السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عالمگیر وبا کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کرونا وائرس کی چوتھی لہر نے مزید 89 زندگیاں اجاڑ دیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 4103 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ پچھلے اتوار میں بنائی گئی موٹر ویز سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا ہم ان موٹر ویز سے کس طرح ریونیو حاصل کر سکتے ہیں۔ آزادی کشمیر تحریک کے بانی سید علی گیلانی سری نگر میں سپرد خاک۔ بھارت کا وادی میں غیر اعلانیہ کرفیو۔ پاکستان میں ایک روزہ سوگ، پرچم سرنگو رکھا گیا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، سیاسی و عسکری قیادت کا اظہار تعزیت۔ پاکستان کی سید علی گیلانی کے جنازے میں شرکت سے کشمیری عوام کو روکنے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا چمن بارڈر کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ شیخ رشید کہتے ہیں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں۔ پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں پہلا جدید میری ٹائم پیٹرول جیٹ ایئر کرافٹ شامل کر لیا گیا۔ امیر البحر کہتے ہیں کہ پاک بحریہ حربی آلات کو جدید تر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطاء اللہ مینگل انتقال کر گئے۔ سردار عطاء اللہ مینگل دل کے عارضے میں مبتلا اور کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بیوی کے چھوڑنے پر شوہر خودکشی کے لیے عدالت کی چھت پر چڑھ گیا۔ شوہر دعائیاں دیتا رہا کہ بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ دبئی میں T20 ورلڈ کپ 2021 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 24 اکتوبر کو ہوگا۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مہم جاری۔ معاشی خسارے پر کنزرویٹو کی ٹروڈو پر تنقید اور ٹول کا کہنا ہے کہ ہم معیشت کو ترقی دیں گے۔ کرونا سرٹیفکیٹ پر ویکسین مخالف گروہ کا اونٹیریو میں احتجاج۔ سرٹیفکیٹ سسٹم کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ۔ ڈک فورڈ صوبے میں ویکسین سرٹیفکیٹ سسٹم لگانا چاہتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,03,018 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 26,962 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,43,808 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ طالبان کی عملداری میں کابل ایئرپورٹ پر پہلے جہاز کی لینڈنگ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں تاحال پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ پنجشیر ہمارے معاشرے میں ہم مفاہمت اور وہ مزاحمت چاہتے ہیں۔ چین کی طالبان کو افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مدد کی پیشکش۔ روسی صدر کہتے ہیں کہ افغانستان میں مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، باہر سے کچھ بھی مسلط کرنا ناممکن ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات 45,45,444 ہو گئیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 21,92,82,805 تک جا پہنچی۔ مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 89 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,978 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,67,791 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,103 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,96,326، سندھ میں 4,33,931، خیبر پختونخوا میں 1,63,010، بلوچستان میں 32,282، گلگت بلتستان میں 9,952، اسلام آباد میں 99,910، جبکہ آزاد کشمیر میں 32,282 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,78,71,620 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,651 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,48,872 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,717 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वायरस से मरने वालों की तादाद 25,978 हो गई। पंजाब में 11,959, सिंध में 6,924, खैबर पख्तूनख्वा में 5,015, इस्लामाबाद में 866, बलूचिस्तान में 339, गिलगित बल्तिस्तान में 173 और आज़ाद कश्मीर में 702 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में सनतों की ज़रूरत है। सनतों के बगैर मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त रहती है। हमने छोटी और दरमियानी सनतों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियालकोट खारियां मोटरवे मंसूबे NHA के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सियालकोट खारियां मोटरवे अहम मंसूबा है। मोटरवे उसी रूट पर बनना चाहिए था। हमें सोचना होगा हम इन मोटरवे से किस तरह रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। पहले अदवार में बनाई गई मोटरवे से मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि सवात मोटरवे के ज़रिए ईद के दिनों 27 लाख गाड़ियां गईं। मुल्क में सयाहत का शोबा बड़ा और अहम है। मोटरवे से सयाहत के शोबे को मजीद फरोग हासिल होगा। डॉलर्स बढ़ाने के लिए सनतों और सयाहत पर तवज्जो देनी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। आज अगर स्वात मोटरवे के आप फायदे देखें, उसने जो खोल दिया स्वात को, ईद के दौरान ईद की छुट्टियों में 27 लाख गाड़ियां गई हैं वहां उस मोटरवे का इस्तेमाल, 27 लाख। अब ये सोचें कि इसके ऊपर किस तरह का पैसा जनरेट हो सकता है इकोनॉमी के अंदर। हमारे पास जो आबादी है हमारी 22 करोड़, इसको हम फायदे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि सनतों को सहूलतें दिए बगैर मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। हम उस इलाके में बड़े पैमाने पर सनतें लगा सकते हैं। ज्यादा आबादी की वजह से उस इलाके की अहमियत ज्यादा है। भारतीय कैद में इंतकाल कर जाने वाले 92 साला सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तदफीन कठपुतली पुलिस ने मज़ार शोहदा की बजाय ज़बरदस्ती हैदरपुरा में करा दी। जनाजे में चंद अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कश्मीर की आज़ादी के सबसे मोतबर और बुज़ुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उन्हें उनके दो बेटे डॉक्टर सैयद नईम गिलानी और सैयद नसीम गिलानी ने लहद में उतारा। अजीम हुर्रियत रहनुमा की वफात की खबर सामने आने के बाद काबिज भारतीय इंतजामिया ने श्रीनगर समेत वादी भर में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मोबाइल फ़ोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलत सल्ब कर ली गई। आबाई ज़िला सोपूर में भी सख्त पाबंदियां आयद करके नीम फौजी दस्तों को सड़कों और चौराहों पर तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत का कहना था कि सैयद अली गिलानी की वफात से कश्मीर एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी की अजीम जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के सरबराह का कहना था कि सैयद अली गिलानी की जिंदगी भर की कुर्बानियाँ और मुसलसल जद्दोजहद कश्मीरियों के भारतीय कब्जे के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने कहा कि सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी के सरखेल और मज़ाहमत का इस्तिआरा थे। शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने कभी भी उसूलों पर समझौता नहीं किया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवां थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि सैयद अली गिलानी की वफात से आज़ादी कश्मीर का तारीख साज अहद तमाम हुआ। सिराजुल हक का कहना था कि सैयद अली गिलानी की रहलत से कश्मीरी यतीम हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों सैयद अली गिलानी की मैयत छीने जाने के शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि कश्मीरियों पर मज़ालिम से भारत का जाली जमहूरी चेहरा आया हो गया है। पाकिस्तान सैयद अली गिलानी के जनाजे में शिरकत से कश्मीरी अवाम को रोकने की मजम्मत करता है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सैयद अली गिलानी ने जिंदगी भर अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। पाकिस्तान हक के खुद इरादियत के हुसूल पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। Let me reiterate that Pakistan will continue to extend all possible support to the Kashmiri people till the realization of their legitimate right to self-determination as enshrined in the relevant UN Security Council resolutions.
आसिम इफ्तिखार का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले अफसोसनाक थे। लवाहकीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। अफगानिस्तान के हालात की वजह से पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में जानी और माली कुर्बानियां दी। पाकिस्तान से बढ़कर अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां कोई और मुल्क नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तामीरी और वाज़ेह है। The sad images of that attack in Kabul unfortunately reminded us of the tragedy and suffering the Afghan people have been through all these years of conflict and instability. Along with Afghanistan, as you know, Pakistan itself has been the biggest victim of the situation, having lost over 80,000 lives and over $150 billion in economy. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए वजीर खारजा ने वस्त एशियाई रियासतों का दौरा किया। वजीर आज़म इमरान खान ने अफगान मसले पर कई मुल्कों के सरबराहान से बात की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में मदद की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चमन बॉर्डर कुछ अरसे के लिए बंद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि खित्ते में पाकिस्तान की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान में अमन चाहती है। तोरखम बॉर्डर पर हालात नॉर्मल हैं। चमन बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा का मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा था। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा की फुटेज देकर उनका मुंह बंद करा दिया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद 1200 सेफ सिटी कैमरों की मंजूरी दे दी। शेख रशीद का कहना था कि नून लीग क़यादत के अपने अपने बयानात हैं। नून लीग के सदर कौमी हुकूमत बनाने का कह रहे हैं। नून लीग की दूसरी रहनुमा कह रही हैं हुकूमत से बात नहीं करनी। हुकूमत के दरवाजे अपोजिशन से बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। अपोजिशन को हुकूमत से बातचीत करना पड़ेगी। अपोजिशन लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो शौक से करे। किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक ऐसा वक्त आ रहा है, आने वाला है, अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी और हमारे दरवाजे भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं है। ये आपस में मिल बैठकर और इस मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है और इस मुल्क में बहरान या इंतशार की इजाज़त किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, किसी शख्स को भी इंतशार, खलफशार और इस मुल्क के अमन व अमान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बेड़े में शामिल किया गया जहाज़ ब्राज़ील का तैयार करदा दोहरे इंजन वाला एम्बेरियर जेट एयरक्राफ्ट है। इस नौ के जहाज़ दुनिया भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाक बहरिया के फ़िज़ाई बेड़े में पहला जदीद मैरीटाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट शामिल कर लिया गया। नेवल चीफ ने कहा पाक बहरिया महफूज बहरी माहौल और मुल्की बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। पाक बहरिया के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक बहरिया के फ़िज़ाई बेड़े में पहला जदीद मैरीटाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट की शमूलियत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अमीर अल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि पाक बहरिया हरबी आलात को जदीद तर बनाने के लिए पुरअज़म है। पाक बहरिया महफूज बहरी माहौल और मुल्की बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। तर्जुमान ने कहा कि शामिल किया गया जहाज ब्राज़ील का तैयार करदा दोहरे इंजन वाला एम्ब्रेयर जेट एयरक्राफ्ट है। इस नौ के जहाज दुनिया भर में फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाक बहरिया मुस्तक़बिल में इस नौ के मज़ीद 2 जहाज फ़िज़ाई बेड़े में शामिल करेगी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान कौम परस्त रहनुमा बलोच नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के वालिद अताउल्लाह मेंगल तवील अलालत के बाद 93 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और कौम परस्त रहनुमा बुज़ुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान कौम परस्त रहनुमा बलोच नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के वालिद अताउल्लाह मेंगल तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। तर्जुमान BNP के मुताबिक 93 साला सरदार अताउल्लाह मेंगल दिल के आर्जे में मुब्तला थे। वो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कराची के निजी अस्पताल में दाखिल थे और तबीयत इंतहाई नासाज होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था, ताहम वो जाबर ना हो सके। ज़िला कचेरी में मोहब्बत की अनोखी मिसाल देखने को मिली। बीवी के छोड़ने के गम से खाविन नामदार खुदकुशी की गर्ज से छलांग लगाने के लिए छत से लटक गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीवी के छोड़ने के गम से शौहर छलांग लगाने के लिए ज़िला कचहरी की छत पर चढ़ गया,
لاہور کی عدالت میں بیوی کے چھوڑنے کے غم میں شوہر ضلع کچہری کی چھت پر چھلانگ لگانے کے لیے چڑھ گیا، تاہم احاطہ عدالت میں موجود لوگوں نے عبد الرحمان نامی شوہر کی خودکشی کی کوشش ناکام بنا دی۔ عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن صبا نے عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان دے دیا، بیوی مجھے چھوڑ گئی، مجھے خودکشی کرنی ہے۔ عبد الرحمان احاطہ عدالت میں سر دیواروں میں مارتا رہا۔ بھارت کی میزبانی میں 17 اکتوبر سے شروع ہونے والے کرکٹ کے عالمی میلے کے تمام تر انتظامات ایمریٹس کرکٹ بورڈ کر رہا ہے۔ میچز دبئی، ابوظہبی اور عمان میں شیڈول ہیں۔ 17 اکتوبر سے ایونٹ کا سپر کوالیفائر راؤنڈ شروع ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل T20 ورلڈ کپ 2021 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ دبئی میں منعقدہ تقریب رونمائی کے مہمان خصوصی UAE کے شیخ نہان مبارک النہیان تھے۔ ان کے ساتھ خالد زارونی اور ICC آفیشلز بھی موجود تھے۔ بھارت کی میزبانی میں 17 اکتوبر سے شروع ہونے والے کرکٹ کے عالمی میلے کے تمام تر انتظامات ایمریٹس کرکٹ بورڈ کر رہا ہے۔ میچز دبئی، ابوظہبی اور عمان میں شیڈول ہیں۔ 17 اکتوبر سے ایونٹ کا سپر کوالیفائر راؤنڈ شروع ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 24 اکتوبر کو ہوگا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔